Hello, welcome to reading comprehension practice. Comprehension for CEUT aspirants. This is narrative passage 2 today that we are going to do. If you want to know more about me, Riddhi Chugh, then please check out the video description below. Before we start, subscribe to the channel, join the Telegram group, most essential. Thank you if you have already joined and subscribed. Before we begin with the passage, here are some important words found in the passage which are important from two perspectives. One, from the perspective of passage, and two, from the perspective of your exam. So for passage, doing the passage, and for examination perspective, you need to improve your vocabulary. Both these perspectives are important. आपके दोनों perspectives के लिए ये चीज़ important है कि आप passage को अच्छे से read कर सकें, समझ सकें, इसलिए vocabulary दी गई है. दूसरा, आपके एग्ज़ाम में आपकी vocabulary के ऊपर questions पूछे जाते हैं, तो ये आपको हेल्प करेगा अपनी इंग्लिश इम्प्रूव करने के लिए. ये वीडियोस सारी बायलिंगुअल हैं. बायलिंगुअल मतलब होता है दो भाषाओं में बोली जा रही हैं. हिंदी भी होगा इसमें, इंग्लिश भी होगा इसमें, ताकि दोनों बच्चे जो हिंदी में कंफर्टेबल है वो हिंदी में समझें, जो इंग्लिश में कंफर्टेबल हैं वो इंग्लिश में समझें. ज़्यादा लोग मेरे हिसाब से हिंदी में ज़्यादा कंफर्टेबल रहते हैं, इंग्लिश में थोड़ा कम रहते हैं, पर उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. यहाँ पे वोकैबलरी में दोनों भाषाओं में इनके मीनिंग्स दिए गए हैं और इनको हमें ध्यान से अब पढ़ना है. सबसे पहले हम शुरू करते हैं. स्पेक्टिकल, विजुअली स्ट्राइकिंग डिस्प्ले. तमाशा, देखने लायक चीज़. कैनवस, बैकड्रॉप, पीछे का हिस्सा जहाँ चित्र बनाते हैं. फ्लटरिंग, मूविंग लाइटली एंड इरेगुलरली, हल्के से ऊपर नीचे होना. अज्यूर, स्काई ब्लू, आसमान जैसा नीला रंग. अलाइट, लिट अप, एक्साइटेड, खुशी से चमकता हुआ. एंथ्रॉल्ड, कैप्टिवेटेड, मंत्रमुग्ध, किसी चीज़ में खो जाना. मेलोडी, प्लीजिंग सीक्वेंस ऑफ नोट्स, अच्छा संगीत, लय. इंसेसेंटली, कॉन्स्टेंटली, बिना रुके लगातार. एफेमरल, शॉर्ट लिव्ड, क्षणिक, कुछ देर के लिए. ट्रांसलूसेंट, सेमी ट्रांसपेरेंट, हल्का. इंट्रिकेट, कॉम्प्लेक्स, डिटेल्ड, जटिल, बहुत सारी डिटेल वाला, कठिन भी हो सकता है. कैमराड्रे, फ्रेंडशिप, ट्रस्ट, दोस्ताना. टेपेस्ट्री, वोवन फैब्रिक विद डिज़ाइंस, डिज़ाइन वाला कपड़ा, चित्रकारी जिसे कहते हैं. टैटर्ड, टॉर्न, वॉर्न, फटा हुआ. रेमनेंट्स, लेफ्ट ओवर, बचा हुआ. लिंगरिंग, रिमेनिंग, परसिस्टेंट, रह जाना. कंटेंटेड, सेटिस्फाइड, संतुष्ट, खुश. वेरीनेस, टायर्ड, थकान, थका हुआ. अनअडल्टरेटेड, प्योर, कंप्लीट, शुद्ध, बिल्कुल सच्चा. फ्लीटिंग,
ब्रीफ बहुत कम समय के लिए, ग्लिम्स मोमेंटरी व्यू झलक एक नज़र, अनअबैश्ड अनअशेम्ड बेधड़क बिना डरे या फिर बिना शर्म करे. I hope you have all gone through the word meanings together. They are both in English and Hindi. I am giving you 2 minutes more. You can pause the video and go through all the words again. It's very important that you do and learn them by heart, because now we are going to complete the passage and we are starting with the passage now. Narrative passage. But before we read the passage, as always, the first thing that we will do is we'll read the questions. जो सबसे पहली चीज़ हम करेंगे वो वही करेंगे कि हम सबसे पहले प्रश्नों को रीड करेंगे ताकि हम पैसेज में उत्तर को ढूंढ सकें जब हम उसे रीड करें. Question number 1. What is the primary setting of the passage? A quiet park, a bustling city street in Jaipur, a peaceful countryside, a modern art gallery. The phrase ephemeral beauty in the passage suggests that the scene was long lasting and permanent, brief and fleeting, dull and uninteresting, overly dramatic. What does Rohan's action of clicking incessantly with his camera indicate? He is annoyed by the noise. He is documenting the event with great enthusiasm. He is trying to avoid interacting with people. He is testing his new camera. The tang of gunpowder in the air suggests the presence of incense sticks, fireworks, burning wood, cooking spices. Which of the following best describes the essence of the festival that Rohan sought to capture? The commercial aspects of the festival, the historical significance of the kites, the feelings of joy, camaraderie, and competition, the technical details of kite flying. The word azure, as used in the passage, most closely means grey, red, sky, blue. Now that we have read the questions in English, it is time to read the passage. अब जब हमने क्वेश्चंस को अच्छी तरह से देख लिया है तो अब हमारे पास वापस जाने हैं हमें और हमें अपना पैसेज रीड करना है. The annual kite festival in Jaipur was a spectacle of vibrant chaos. This is our word number 1 from our word meaning sheet. From dawn, the sky was a canvas of fluttering kites, each a splash of color against the azure backdrop. तो वो क्या कह रहा है? The annual kite festival जो जयपुर में हो रहा था वो देखने वाला एक दृश्य था. From dawn, सुबह से लेकर the sky was a canvas of fluttering kite. पूरा sky fluttering kite से भरा हुआ था. Each a splash of color against the azure backdrop. और सारे कलर्स बिछे हुए थे. एक azure backdrop मतलब ब्लू स्काई का बैकड्रॉप था और सारे कलर्स स्प्लैश की तरह बिछे हुए थे. Children, their faces alight with excitement. बच्चों के चेहरे खुशी से जगमगा रहे थे. चमक रहे थे या जगमगा रहे थे, दोनों ही ठीक है. दोनों ही हिंदी में अनुवाद इसके ठीक है. Chased after stray kites and cries echoing through the narrow winding lanes. और बच्चे खुशी से जो काइट्स नीचे गिर रही थी उनको क्या कर रहे थे? उनके पीछे भाग रहे थे. कहाँ पे? नैरो लेन्स थी ये, बिल्कुल वाइंडिंग लेन्स थी. Adults equally enthralled engaged in fierce kite battles. Adults जो थे वो बहुत equally enthralled मतलब equally खुश, equally enthusiastic, engaged थे in a fierce kite battle. Fierce kite battle मतलब बहुत ही ज़्यादा competitive
काइट बैटल चल रहा था, इसलिए वो फियर्स काइट बैटल में सारे व्यस्त थे. देयर स्ट्रिंग्स सिंगिंग अ पिच्ड मेलोडी एंड दे स्लाइस थ्रू द एयर. देयर स्ट्रिंग्स सिंगिंग अ हाई पिच्ड मेलोडी एज दे स्लाइस थ्रू द एयर. और आवाज़ आ रही थी स्ट्रिंग्स की हवा में गुजरते हुए. अमंग द throng stood Rohan, a young photographer, his camera clicking incessantly. incessantly मतलब लगातार बिना रुके. ही वॉज कैप्टिवेटेड. क्या चीज़ थी जो उसके इमोशंस को, उसकी भावनाओं को कैप्चर कर रही थी? बाय द एफर्मल ब्यूटी ऑफ द सीन, बाय द शॉर्ट लिव्ड ब्यूटी ऑफ द सीन. एफर्मल का मतलब होता है शॉर्ट लिव्ड. The way the sunlight caught the translucent paper of the kites, the expression of pure joy on people's faces, and the intricate patterns created by the tangled strings. किस चीज़ से वो बिल्कुल कैप्टिवेटेड था? द वे द सनलाइट कॉट द ट्रांसल्यूसेंट पेपर ऑफ द काइट्स. जिस तरह से सूरज की किरणें काइट्स के ऊपर पड़ रही थी. द एक्सप्रेशन ऑफ प्योर जॉय ऑन पीपल्स फेसेस, लोगों की मुस्कुराहट देखकर. एंड द इंट्रिकेट पैटर्न क्रिएटेड बाय द टैंगल्ड स्प्रिंग. और जो भी पैटर्न्स हवा में बन चुके थे बिकॉज ऑफ स्ट्रिंग्स की वजह से, काइट स्ट्रिंग्स की वजह से, वो सारी चीज़ें देखकर वो बिल्कुल कैप्टिवेटेड फील कर रहा था. ही sought टू कैप्चर नॉट जस्ट द विजुअल स्पेक्टिकल बट द वेरी एसेंस ऑफ द फेस्टिवल. वो क्या करना चाहता था? ही वॉन्टेड टू कैप्चर वॉट? नॉट जस्ट द विजुअल स्पेक्टिकल, जो दृश्य दिखाई दे रहा था सिर्फ वो नहीं, लेकिन उसका वेरी एसेंस जो था फेस्टिवल का, वो कैप्चर करना चाहता था. द स्पिरिट ऑफ camaraderie, the thrill of competition and fleeting moments of happiness. camaraderie का मतलब भाईचारा. As the day wore on, the sky became a tapestry of tattered kites. जैसे ही ये दिन बड़ा हुआ, जो भी सारी tattered kites थी उसकी एक टेपेस्ट्री बन गई. Remnants of the day's battles. The air thick with the scent of street food and the lingering tang of gunpowder from the firecrackers burst with contented weariness. The air thick with the scent of street food. Street food की खुशबू आ रही थी हर जगह. And the lingering tang of gunpowder from the firecrackers. और gunpowder की भी खुशबू आ रही थी. दो खुशबू आ रही थी. एक थी स्ट्रीट फूड की, एक थी gunpowder from the firecrackers. बर्स्ट विथ कंटेंडेड वेरीनेस. तो हवा कैसी थी? बर्स्ट कर रही थी विथ कंटेंडेड वेरीनेस. रोहन, हिज कैमरा रोल फेल्ट अ सेंस ऑफ फुलफिलमेंट. कैमरा रोल उसका पूरा भर गया, मतलब उसने इतनी सारी फोटोज खींच ली कि उसका कैमरा रोल भर गया पूरा कंप्लीटली. तो वो बिल्कुल फुलफिलमेंट महसूस कर रहा था. He had witnessed a moment of pure, unadulterated joy, a fleeting glimpse into the heart of a city that celebrated life with unabashed enthusiasm. उसने क्या विटनेस किया था? उसने वो विटनेस किया था एक मोमेंट ऑफ प्योर, अनअडल्टरेट का मतलब होता है शुद्ध जॉय, खुशी. अ फ्लीटिंग ग्लिम्स और इनटू द हार्ट ऑफ सिटी. एक बहुत छोटी सी झलक सिटी के दिल की. that celebrated life with unabashed enthusiasm. जो लाइफ को सेलिब्रेट कर रही थी with unabashed, बेधड़क होकर, एक enthusiasm के साथ सेलिब्रेशंस जो चल रहे थे सिटी में, उसकी बात हो रही है. अब आगे बढ़ते हैं. तो सबसे पहले आता है क्वेश्चन, व्हाट इज़ द प्राइमरी सेटिंग ऑफ द पैसेज. पैसेज की सबसे प्राइमरी सेटिंग क्या है? अ क्वाइट पार्क, अ बस्लिंग सिटी स्ट्रीट इन जयपुर, अ पीसफुल कंट्री साइड, अ मॉडर्न आर्ट गैलरी. तो इसका आंसर है अ बस्लिंग सिटी स्ट्रीट इन जयपुर. ये हमें कहाँ मिलेगा? हम वापस जाएंगे. द एनुअल काइट फेस्टिवल इन जयपुर was a spectacle of vibrant chaos. So, which is what? The
सबसे पहले तो इट्स ए एनुअल काइट फेस्टिवल दैट्स हैपनिंग इन जयपुर, दैट इज़ आवर बिगेस्ट हिंट. सेकेंड हिंट, इट्स ए वाइब्रेंट क्योस है. आंसर्स हम दूसरे कलर में मार्क करेंगे अब से, ताकि आपको अच्छे से समझ आए. The phrase ephemeral beauty in the passage suggests that the scene was long lasting and permanent. No. Brief and fleeting. Yes. ये हमें वोकैबलरी वर्ड मीनिंग से पता है. अगर आपको एफेमरल ब्यूटी का मीनिंग नहीं समझ में आ रहा है तो आप इस पैसेज को पढ़िए और इससे सेंस बनाने की कोशिश कीजिए कि इसका क्या मतलब हो सकता है. तो इसका जो मतलब पैसेज में निकल कर आता है वो ये है, ही वॉज कैप्टिवेटेड बाय द एफर्मल ब्यूटी ऑफ द सीन, the way sunlight caught the translucent paper of the kites, the expressions of pure joy on people's faces, and the intricate patterns created by the tangled strings. तो इसमें हमें यही समझ में आता है कि it was brief and fleeting. डल एंड अनइंटरेस्टिंग नहीं लग रहा है, ओवरली ड्रामेटिक नहीं लग रहा है, क्योंकि वो एक जेन्युइन फीलिंग है, उसमें कोई ड्रामा नहीं किया गया है. और ये लॉन्ग लास्टिंग और परमानेंट तो नहीं है. तो इसलिए हमारे पास क्या ऑप्शन बचा? ब्रीफ एंड फ्लीटिंग. What does Rohan's action of clicking incessantly with his camera indicate? He is annoyed by the noise. Noise से annoyed है वो. He is documenting the event with great enthusiasm. बहुत ही enthusiasm से वो पूरे event को document कर रहा है. He is trying to avoid interacting with people. वो लोगों से बातचीत नहीं करना चाहता. He is testing his new camera. वो अपने नए कैमरा को टेस्ट कर रहा है. तो इसमें से जो आंसर है वो है हमारा बी, ही इज़ डॉक्यूमेंटिंग द इवेंट विद ग्रेट एंथुजियाज्म. और इसका हमें कहाँ पे मिलता है आंसर? अमंग द थ्रॉन्ग स्टूड रोहन, अ यंग फोटोग्राफर, हिज कैमरा क्लिकिंग incessantly. ही वॉज कैप्टिवेटेड बाय द एफर्मल ब्यूटी ऑफ द सीन. तो जहाँ पे हमारे ये वर्ड दिखाई दे रहा है कैप्टिवेटेड, तो इसका मतलब वो बहुत ही उसके पूरे इंटरनल इमोशंस वर अलाइंड विद व्हाट वाज गोइंग ऑन. बिल्कुल वो कैप्टिवेटेड फील कर रहा था बाय द एफेमरल ब्यूटी ऑफ द सीन, द वे द सनलाइट कॉट द ट्रांसलूसेंट पेपर ऑफ द काइट्स. तो इससे हमें क्या पता चलता है कि ही वॉज अनॉयड बाय द नॉइस. ऐसा कुछ भी नहीं पैसेज में बोला गया. ही इज़ ट्राइंग टू अवॉइड इंटरेक्टिंग विद पीपल, ऐसा कुछ भी नहीं पैसेज में बोला गया. फिर से, as a matter of fact, he is looking at everyone's faces and he is very interested in the way people are enjoying themselves. He is testing his new camera. नहीं, हमारे उसकी कैमरे की हमारे से कोई बात नहीं हुई कि वो टेस्ट कर रहा है. तो फिर हमारे पास जो ऑप्शन बचा वो यही था, बी, ही इज़ डॉक्यूमेंटिंग द इवेंट विद ग्रेट जॉय. उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं. द टैंक ऑफ गन पाउडर इन द एयर सजेस्ट द प्रेजेंस ऑफ इंसेंस स्टिक्स, फायरवर्क्स, बर्निंग वुड, कुकिंग स्पाइसेस. ये एक डायरेक्ट क्वेश्चन था, इसका बिल्कुल डायरेक्ट आंसर था. ये हमें यहाँ मिलता है जहाँ पे ये बोला गया है. अगर आपको मिल चुका है तो बहुत अच्छी बात है, मैं अभी ढूंढ रही हूँ. लिंगरिंग टैंक ऑफ गन पाउडर फ्रॉम फायर क्रैकर्स. तो ये यहाँ पे मेंशन्ड है, दिस हैज़ बीन मेंशन्ड हियर. तो ये आपको आंसर मिल चुका है. आंसर नंबर 4. हमने बाकी आंसर्स मार्क नहीं करे हैं पर हमें मार्क करने चाहिए, इसलिए हम जल्दी से पहले सारे आंसर्स मार्क कर लेंगे यहाँ पे भी, ताकि जिन बच्चों को नहीं पता चल रहा है कि कहाँ पे ढूंढना है पैसेज में, उनको अच्छे से दिखाई दे. ये नंबर 2 है. ये नंबर 3 है.
Because he is captivated, we know that he is very enthusiastic. He sought to capture. ये डॉक्यूमेंटेशन का प्रूफ है कि he wants to document. Which of the following describes the essence of the festival that Rohan sought to capture? इनमें से कौन से वाक्य हमें बताते हैं कि एसेंस ऑफ द फेस्टिवल क्या है जो रोहन कैप्चर करना चाहता था? द कमर्शियल एस्पेक्ट्स ऑफ द फेस्टिवल, द हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस ऑफ द काइट्स, द फीलिंग्स ऑफ जॉय, camaraderie and competition, the technical details of kite flying. The technical details of kite flying were never discussed in the passage, so we can eliminate this choice, which is choice number D. The feelings of joy, camaraderie and competition, possible. The historical significance of the kites has not been discussed. The commercial aspect of the festival has also not been discussed in the passage. So what we are left with is the feeling of joy, camaraderie and competition. और ये हमें कहाँ मिलता है? The feeling of joy, camaraderie and competition. Camaraderie as a word is already mentioned in the passage. अगर आपको मिल चुका है तो बहुत अच्छा है. ये रहा, मुझे भी मिल चुका है. आप लोग मेरे से तो ज़्यादा क्विक हैं, ये मुझे लगता है. The word azure as used in the passage most closely means sky blue, क्योंकि ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. इसलिए आपको लिए अपनी वोकैबुलरी को इम्प्रूव करना इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट एज प्रैक्टिसिंग रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन पैसेजेस. बिकॉज आपकी जो भी डायरेक्ट वोकैबुलरी की क्वेश्चंस आएंगे वो आप डायरेक्ट उनको सॉल्व कर सकेंगे. अब हम जल्दी से चलते हैं लास्ट आंसर शीट पे टू सी कि हमें कितना सही बोला है और कितना गलत बोला है. A bustling city street in Jaipur is correct. Brief and fleeting, yes. He is documenting the event with great enthusiasm. यही हमने चूज़ किया था. Fireworks हमने बोला था. The feeling of joy, camaraderie and competition, ये भी हमने बोला था. And sky blue. So all of our answers are correct. अगर आपको इस वीडियो में भरपूर प्रैक्टिस करने का मौका मिला तो मेरी दूसरी वीडियो ज़रूर चेकआउट करें, ज़रूर प्रैक्टिस करें. CUET के लिए रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन प्रैक्टिस की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है ये आप और मैं ही हैं जो समझते हैं. इसलिए see you in the next class, and it was great fun going through the passage with all of you. Subscribe to the channel and join the Telegram group if you want more benefits to reach you.